to realize their dream of becoming an engineer or a doctor. On behalf of Mrs. Das, our principal, and myself, I welcome the staff from Gravity classes, parents, and dear students. We at La Martiniere believe in bringing the best opportunities to our girls, academics, and beyond. Many of our girls aspire to become an engineer or a doctor. To accomplish their dreams, they need professional guidance from the experts in the field. Keeping this in mind, we are collaborating with Gravity classes for both NEET and JEE classes so that our girls do not have to juggle between school and coaching. It saves their time and they are in the safety of the campus and getting the best guidance. Through this collaboration, the Gravity fee package has been considerably reduced, especially for our girls. We are also planning to organize a scholarship test on the basis of which the girls may get a further fee waiver. These details are being worked on and shall be shared soon with you. We will be updating you on the date and time of the scholarship test through email and WhatsApp messages. At this point, I would like to introduce Mr. Ashfaq, founder of Gravity classes. Sir is here with us along with a team of faculty to orient us with his institute and tell us how registering for Gravity classes will be beneficial for our girls. This will be followed by a question and answer round. Over to you, Ashfaq, sir. Is he outside? अंकल गुड इवनिंग। तो हम लोग यहाँ पर आज लमार्ट्स के साथ जो ग्रेविटी का स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग उसको डिटेल्स शेयर करने के लिए यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं आज। तो हमारी ग्रेविटी की टीम से अभी अराउंड 10% यहाँ पर हैं। इसमें से मोस्टली फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो अभी सबका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। हम पहले थोड़ा सा प्रोग्राम की डिटेल शेयर करना चाहेंगे और हम अपनी टीम से मृदुलिका मैम को चाहेंगे कि वहाँ के कुछ प्रोग्राम्स की डिटेल शेयर करें। मृदुलिका मैम, आप बायो की फैकल्टी हैं हमारे यहाँ, तो ये कुछ प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर करेंगी और कुछ डिटेल्स के बाद हम लोग पेरेंट्स के साथ में क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। उसमें आपका टीचर्स से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम लोग विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द क्वेरीज। थैंक यू मैम, प्लीज। A very good evening to all the dignitaries present today. I would take this opportunity to thank Principal Ma'am, Kapoor Ma'am, and other authorities for giving us this opportunity and wonderful platform to introduce ourselves and our team. I would like to welcome all the dear parents and students for today's session, where we'll first introduce ourselves, learn a thing or two about JEE, NEET,
the SIP program, move on with NTSC, Olympiads, KVPY, and also have a question answer session. So, to begin with, we are Gravity. Right from the very beginning, it was our vision to impart quality education in conducive ambience where a kind of deep mutual understanding and trust develops between the mentors and the students. We like to call ourselves mentors. Rather than lecturers, we believe that we can help. The foundation which your school has really built in you, we can help raise it further, and whatever the excellent education you have received till now from your school, we can really take its help and guide you in the right direction. In this endeavor, we strived hard and slowly but steadily developed a system which is so simple and effective that results started trickling in. When we started off, it was our vision that we need and we must provide education that will really help the students. We have always thought about the same thing and we have kept this thing in our mind. We have made sure that we never alter from this path. It is our, in fact, institute's message to everyone that education should be made available to everyone and who is ready to give their 100%. On a consistent basis, we produced over 3,500 selections in IIT JEE and over 3,000 in various medical examinations. So this is what we are talking about. We'll be showing you the results that we have produced year after year and so on. Now, we, Gravity, are the best results in the city. We emphasize on board exams as well. Now, since we are talking about SIP is School Integrated Program. We take board exams seriously too. It's not just about JEE or it's not just about NEET. We understand that the student needs to excel in the board exams as well, and we take that seriously equally. Weekly test. See, this is something that we must understand that the moment a test is announced, we all really get some kind of goosebumps or we start preparing seriously. And this is something that we really need because somewhere down the lane we need to test our performance. We need to test how much we have prepared. And this is something that keeps us on our toes. Personalized attention. This is something that we really pay very close attention to ourselves because we understand that every child has her own needs and she needs to have that kind of attention that she requires. I cannot generalize something for every class, every student that is present in my class. So I really need to emphasize on that particular student what her requirement is, what she really needs. Expert faculty. We have an expert faculty pool which comprises of IITians, NITians, doctors and masters. Trust me when I say that we have the best faculty pool in the city and I'm not even wrong. Right from IIT Madras, right from IIT Dhanbad, BHU, we all have the big names in our faculty pool. Now, exceptional guidance for IIT JEE and NEET. Your school has given you the best. As I said earlier, we are just here to raise the building. IIT, JEE and NEET is not something that is what everyone talks about कि बहुत tough है. हाँ, tough है, but it is doable. It is understandable and it is doable. So what we provide really is the exceptional guidance, that extra thing that you all need in order to crack JEE or NEET. We feel immense pride in saying that we are not here to deliver lectures. No, we don't deliver lectures. We make sure that our sessions are interactive. We make sure that the student actually has something to say in the class, and we really want them to say something because the more the student speaks, the more we understand what exactly the student needs. So this is what we say. We don't deliver lectures. We keep the sessions interactive. We are here to make you the star that you are destined to be. We want you to crack IIT, JEE, NEET. We want you to raise the bar. We want you to be the talent that you have always dreamt of. We are mentors. Like I said earlier, we are not teachers. We are mentors. We believe in mentorship. We believe in guiding. We help in your career path, provide guidance, motivation, emotional support, and role modeling. It's not just about teaching you the subject that you're talking about.
If you're in my bio class, it is my responsibility to see that you are developing overall. It's not just about biology, it's about everything that you need. What we deliver is your aim and goals that you dream of. Whatever you dream of, whatever goals you have attached yourselves to, we align with that. Whatever your dream is, we will really be trying to fulfill them. So, what makes IIT JEE and NEET seem so tough? Now, I have used the word seem, and definitely you might agree that yes, it does seem tough. But what actually makes it tough? Guidance. Without proper guiding system, even an experienced sailor would be lost. If a sailor does not have his proper guiding system, guiding light also, he might be lost. That is true. Practice and revision. This is where most of the students fail. Future engineers and doctors need this a lot. This is true. The more questions you solve, the more better and you can say the more enhanced your performance is in the test. See, ultimately it is all about the entrance test, entrance examinations, and to do better in that, you need to be better at giving tests. You need to have good results. Motivation, easily lost. See, there's this quote about motivation, that motivation doesn't really, you can say, stand long. It is like bathing. You have to do it every day, right? You must get yourself motivated by whatever makes you feel that you want to cross that edge, you want to cross that boundary and move into IIT, JEE and NEET. Mindset. Prejudices and perceptions hamper the preparation. This is true. The moment you hear about IIT, JEE, even if you do not fully understand what it is, what is the exam pattern, you do not know what kind of questions you might be facing, but there's a perception among the people that it is very tough. अरे बहुत मेहनत लगती है. That you can do, right? You don't have to be prejudiced. You don't have to form an opinion about anything that you haven't yet experienced. Now, how we make IIT, JEE and NEET easy? It's the same thing, same points we'll be discussing. Guidance. With highly qualified and dedicated mentors, anything is possible. And this is true. This is not just about us. If you find the right guru, if you find the right mentor, you can really do wonders. Practice and revision. You want questions, we'll give you ample. You have doubts, we will solve them all. We love doubts. Every teacher in gravity, every mentor in gravity loves doubts. The more students come up with their doubts and ask them, we are more than happy. Bacha पढ़ रहा है. This is our first impression, and that really helps us to even do better, because हमारे लिए भी it is some sort of motivation that the kid is actually trying harder. So the more doubts you bring to us, the more happier we are. Motivation, easily lost, but we are here to help you find it. You never know what kind of thing or what kind of instance might bring that kind of motivation for you. It's just a spark, right? We are here to find it. And of course for you. Mindset can be changed, right? When you start to know something, or rather you try to understand something about it. Right now, you must have done the chapters related to circulatory system and excretory systems in bio, and they might have been seemingly very tough to you. But at the end of the day, you were able to understand them. Maths tough लगता है, but अगर आप question solve करते हो, you can truly understand what is the concept behind it, right? So the more you practice, the more you can say कि आप जो चाहो वो achieve कर सकते हो. Breaking stereotypes and producing results is what we do. We'll be having a look at our results later, but this is our specialty. We make sure that we break the stereotypes. We make sure that whatever we can do to ensure that you do well is our, you can say, our journey, our destination. Now, can anyone identify this building? From anyone from you? Okay, can you please, any one of you, can you? Yes, ma'am? Yes, sir, it is KGMC. Now, KGMC or KGMU is actually located in the heart of our city, and it is one of the most prestigious medical schools in India, right? All the students that are present over here, have you seen KGMC ever, or just crossed that path? Any one of you? Yes, so definitely if you get an admission over here, it is definitely a prestigious thing. It is an honor to be enrolled in here.
And what is the procedure to enroll here? You have to appear for your exam. I'm sorry. You have to appear for NEET, and NEET is, so first and foremost, let's try and understand who really doctors are. Doctors, the saviors of the world, the noblest of all professions. I cannot emphasize on the fact that how important doctors are for the society. In the past 2-3 years, we have really seen what role they play in our lives, how important their being in the service is. So definitely it is the noblest of all professions. Dedicate their entire lives to the service of mankind. I think they are the most, you can say, generous when it comes to service to mankind. They strive their best, they don't go on holidays, they give their best. The finest of all virtues: sincerity, discipline, kindness, and gratitude. And when you talk about a doctor, most of the doctors are really dedicated to their service. Most of the doctors see to it that they are actually, in fact, even if you see the medical students, if you see their lives, these all things, sincerity, discipline, kindness, and gratitude, is something that they follow daily because it is their profession which makes them so. Remarkable contribution to the society. We all know how important a doctor is to the society. Always a demand for good doctors. Not even apples these days can keep the doctors away, right? Apples might be able to keep the doctors earlier away, but today, even if you eat apples, you still need doctors. You never know why and you never know when. So, NEET. National Eligibility Cum Entrance Test, which is required for admission to the undergraduate medical courses. Now, this is the examination that you need to appear for if you want to become a doctor. It is conducted in pen and paper mode in 13 languages as a uniform entrance examination for admission to MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS or BHMS and other undergraduate medical courses in approved or recognized dental, Ayush and other colleges, deemed university, institutes, AIIMS and JIPMER in India. So overall, if you want to get any kind of degree in the said courses anywhere in India, you must have appeared for NEET. This year, for students who have given the examinations of class 12th, they will be sitting for the NEET examination on July 17. So generally, this is the time during which NEET is conducted, between May to July, given on the conditions. So NEET is an entrance examination that you need to appear for. Age, minimum of 17 years at the time of admission. Upper age limit, there is no limit for that. You can appear as many times as you want rather. But the minimum age requirement is 17 years at the time of admission. So if your birthday falls just between the examination and date of admission, that is still fine. Subjects, which are the subjects that are seen in NEET: physics, chemistry and biology. Emphasis on NCERT. Obviously, because NTA and NCERT both are involved, so NCERT is given special emphasis. Number of questions, 200 in all. Candidate needs to attempt 180, marks are 720. So the overall questions that you get in the question paper are 200 and you have to solve 180. How? We'll explain it. There's two sections, separate sections, section A and section B. Section A, there are 35 compulsory questions. Each subject, physics, chemistry. Now biology is divided into botany and zoology. So you'll have 35 compulsory questions for each section. So 35 compulsory questions. Section B, however, has some choices. You have to attempt 15 questions, out of which the candidate has to attempt 10. So overall, 45 questions is something that you need to appear for. Now, marking, correct answer fetches you +4. Wrong answer deducts 1 mark. So for every correct answer, every correct option that you choose, you have to, you can score rather 4 marks, and if the answer is wrong, 1 mark gets deducted. So this is the pattern of the examination. Now these are the top colleges in India. Now you can see the first is obviously AIIMS, New Delhi. Earlier there used to be a different entrance, but now from past few years it is again in NEET. So NEET is the only examination that you need to appear for. Christian Medical College, Vellore, BHU, Varanasi, JIPMER, Pondicherry, and lastly KGMU. So see how important KGMU is. It is
placed at the 5th position in whole of nation when it comes to the medical colleges. So if you get an admission in KGMU, I think this is one of the best things that can happen to you. Now, moving on to IIT JEE. What is common between Sundar Pichai? Who is Sundar Pichai? Any answers? Yes? CEO of Google, yes. N.R. Narayan Murthy? Infosys? Okay. Nandan Nilekani? We all have had that very ugly picture of us clicked at the Aadhaar centers. He is responsible for that. Okay. Nandan Nilekani is also the co-founder of Infosys. Raghuram Rajan. Right, sir. Sachin Bansal. Yes, Flipkart. Dipinder Goyal. Ordered anything from Zomato lately? Thank this person. Dipinder Goyal. Bhavesh Agrawal. Ola, right, sir. And most importantly, Jeetu Bhaiya. Who among all you know Jeetu Bhaiya? Jeetu Bhaiya is from IIT Kharagpur. Okay, now moving on to next. Can you identify this building? Okay, I will ask Sameer sir to shed some more light on IIT JEE as he specializes in this, and we'll see you later. Thank you. Good evening, everyone. So, any guesses where this building is situated and what is known for? No guesses. This is IIT Kanpur building, known for aeronautical engineering among all the IITs. So now we will move towards IIT JEE section. And the first question arises in the mind, what makes IIT so special? जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें IIT से मिलने वाला है, that is self confidence. और उसका रीज़न है, अगर आप सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के टफेस्ट एग्ज़ाम जो आफ्टर 12th कंडक्ट कराए जाते हैं, उन सब की एक रैंक बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, तो टॉप मोस्ट पे आपको IITs को पाएंगे आप. जो JEE का एग्ज़ाम है वो टफेस्ट एग्ज़ाम है. और IITs का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. बट नाउ वी कैन से दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी आपने लेटेस्ट न्यूज़ अगर पढ़ी होगी, 25 कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है कि वहाँ पे IITs के एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं. और उसमें मैं 3 कंट्रीज़ का नाम लेना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑल्सो. तो अब IITs का एग्ज़ाम अब पहले से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर उसका बढ़ चुका है, उसकी ग्रेविटी बढ़ चुकी है. अब और ज़्यादा कम्पीट करेंगे बच्चे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये IIT को सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाता है ये चीज़, उसका टफ होना, उसका टफेस्ट नेचर. अच्छा, जब आप एक इतना टफेस्ट एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं, उसके लिए तैयार करते हैं और फिर फाइनली जाकर आप उसको क्रैक कर लेते हैं, उससे जो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी टैबलेट को खा के नहीं आ सकता. किसी मोटिवेशनल स्पीकर को आपने सुन लिया, वो 1 रात तक रहेगा, 2 रात रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस सस्टेन वही करता है जब आप कुछ अचीव करते हैं, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है आगे. और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हमें वैल्यू मिल रही है सोसाइटी में. लेकिन सिर्फ इतना ही फ़ायदा नहीं है. जॉब सिक्योरिटी, जिसके लिए कहीं ना कहीं सभी परेशान रहते हैं, और हम करियर ऑप्शन चूज़ करने से पहले सबसे पहले इस चीज़ को सोचते हैं कि क्या हम जिस करियर ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी है या नहीं. अगर नहीं होती तो शायद हम नहीं जाते हैं उस साइड पे, भले ही वो कितना ईजी क्यों ना हो. जॉब सिक्योरिटी इज़ आवर प्राइम मोस्ट प्रायोरिटी. नेक्स्ट,
जो इम्पोर्टेंट पर्क्स है जो मिलता है हमें, ग्रेट कॉलेज लाइफ। हम सभी में जितने भी एस्पिरेंट होते हैं JEE या किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करने का मन करता रहता है कि हम पैरेलली काश हम इसको कर पाते, चाहे वो सिंगिंग की हो या रोबोटिक्स हो सकती है या ट्रैकिंग हो सकता है। हर किसी का अपना एक कोई ना कोई हॉबी होता है जो इंसान उसको परस्यू करना चाहता है और उसमें उसको एक फील गुड फैक्टर आता है जब वो उसको करता है। लेकिन आप कोई और करियर ऑप्शन चूज़ करते हुए अपनी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को अगर कर रहे हैं और वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको डर है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ अगर मैंने इसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने किसी भी एंटरटेनमेंट को दिया तो उसकी वजह से पता नहीं मेरा सिलेक्शन इंश्योर हो पाएगा और वो जिस जॉब के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब करियर उतना सिक्योर होगा या नहीं होगा, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे साथ में। लेकिन IITs में आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार आप सेलेक्ट हो गए, जॉब सिक्योरिटी है, अब आप साथ में परस्यू कर सकते हैं अपना जो भी आपकी हॉबी है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आप करना चाहते थे वो आप वहाँ पे कॉलेज लाइफ के साथ साथ उसको परस्यू कर सकते हैं। और उसमें आपके लिए नो डाउट जो कैंपस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी जितने भी जो टॉप 7 IITs हैं खासकर, वहाँ पे आपको हर IITs में ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि आप रोबोटिक्स करना चाहते हैं, आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आप इस तरह की किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं तो आप वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये डर नहीं है माइंड में कि अब मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, अब मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, क्या मुझे IIT करने के बाद BTech की डिग्री लेने के बाद भी इधर उधर भटकना पड़ेगा। ये कंसर्न आपकी IITs में जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे आपको। स्कॉलरशिप्स, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये डर भी मन से आपके निकल जाता है कि वहाँ की फ़ीस कैसे पे करनी है। जिनके भी इतनी अफोर्डेबल फ़ीस हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद, इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जहाँ से आप अपनी फ़ीस, इतने सारे रिसोर्सेज आपके सामने आ जाते हैं कि आप वहाँ से वो सारी कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे मतलब बड़ा फ़ायदा एक कि ग्रेट एल्यूमिनाई, IAS ऑफिसर्स, बिजनेस क्लास, आप जितने भी आज स्टार्टअप्स दे सकते हैं। जैसे मैम ने अभी आपके सामने एक लिस्ट खोली, उसमें पूछा गया था इनमें से क्या कॉमन है। कॉमन यही है कि ये सब IITian हैं। तो IIT में जाने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है कि वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको आगे अपनी करियर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कॉन्टैक्ट के बगैर कोई करियर ग्रोथ नहीं हो पाती है। आगे जाकर पता चलता है कि हाँ, जिनके पास ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जल्दी ग्रोथ मिल जाती है वो आगे, क्योंकि खाली IIT कर लेना या खाली आप इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए, असली जर्नी तो वहाँ उसके बाद स्टार्ट होती है, जब आपकी सोशल लाइफ स्टार्ट होती है। वहाँ पे काम आते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वहीं से आप देखते हैं अभी भी ये ट्रेंड बना हुआ है। मतलब मैं तो पिछले 10 साल से इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ कि आप पहले ऐसा होता था आज से 10 साल पहले कि अगर आप किसी से पूछेंगे कि मुझे UPSC में जाना है, अपने बच्चे को UPSC में डालना है, मुझे IAS PCS बच्चे को बनाना है, बताइए मुझे 12th के बाद क्या ग्रेजुएशन के लिए कौन से ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। तो नॉर्मली लोग आपको राय देंगे कि BA कराइए, ह्यूमैनिटीज़ से करा लीजिए क्योंकि आपको ऑप्शनल चूज़ करने में आसानी हो जाएगी और वो GS के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और वो भी स्ट्रॉन्ग करता चलेगा वहाँ के लिए। लेकिन पिछले 5, 6, 7, 8, 10 सालों का ट्रेंड ऐसा है कि आप अगर टॉप 50 रैंकर्स उठा लीजिए UPSC के, टॉप 50 की बात कर रहा हूँ, उसमें से मोर देन 25 डॉक्टर्स और IITians मिल जाएंगे आपको। ऐसा क्यों है? उनकी लाइफ तो पहले ही सिक्योर हो चुकी थी, वो नहीं भी जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी उनको। और हो सकता है उनमें से काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने जब IIT क्रैक किया हो उस टाइम पे उनके दिमाग में ये हो ही ना कि मुझे UPSC जाना है, और ऐसा ही होता है, नहीं होता है उस टाइम पे कि उन्हें UPSC जाना है, क्योंकि अगर उस टाइम पे ऐसा होता तो वो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते, क्योंकि ट्रेंड तो वही चल रहा था। फिर कैसे पहुंच गए? ये मेंटल सेटअप की वजह से हुआ है। आप जब लगातार ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, लगातार जी रहे होते हैं डेली लाइफ में उसको, और न सिर्फ जी रहे हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपने BTech कर लिया, उसके बाद लोग जाते हैं बाहर जॉब करते हैं, चाइना, US, और फिर वापस आकर फिर जॉब छोड़ते हैं और 1-2 साल तैयारी करते हैं, फिर UPSC का एग्ज़ाम निकालते हैं। इवन कई सारे टॉपर्स आपको मिलेंगे, उनकी यही स्टोरी है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब इतना टफ एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया है, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर लिया है, तो आपका मेंटल एटीट्यूड ऐसा बन जाता है कि फिर टफेस्ट एग्ज़ाम आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रह जाते हैं वहाँ के बाद से, या उन चैलेंजेस को लेने से आप डरते नहीं हैं फिर।
एक बार आपका वो मेंटल सेटअप बन गया, एक बार वो एटीट्यूड डेवलप हो गया मेहनत करने वाला, जो कि यूपीएससी को चाहिए, और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे, ताकि आप सस्टेन कर सकें। क्योंकि वो एग्जाम ऐसा है कि थ्रू आउट द ईयर तो खाली एग्जाम चलता है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। सपोज करिए इंटरव्यू में नहीं हुआ, आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, अब आपके अंदर वो परसीवरेंस होनी चाहिए कि आप फिर से इतनी हिम्मत करके फिर से 1 साल दें अपने आप को। वो नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता, लोग टूट जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में। उसके लिए आप पीछे आपने कई सालों से अगर उसी एनवायरनमेंट में गुजारा है अपना टाइम, तो ही आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप वहाँ पे जाकर अच्छा करेंगे। और यही वजह है सिर्फ कि जो बच्चे 12th लेवल पे ये डिसाइड नहीं किया होता है, जिन्होंने जब आईआईटी में जा रहे होते हैं कि मुझे यूपीएससी निकालना है, फिर भी वो आगे आईआईटी निकालने के बाद फिर यूपीएससी में जा चुके होते हैं। और आज काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड जो आईआईटीएन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। अच्छा, वो लोग क्यों फेल हो रहे हैं जो कोई आसान सा ग्रेजुएशन चूज़ कर लेते हैं, आसान यूजी कोर्सेज चूज़ कर लेते हैं, सपोज करिए बीए हो गया या इस तरह का कोई और कोर्स, इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मेहनत करने की आदत नहीं पड़ पाती है। आप बहुत आसानी से वहाँ पे 80% 90% स्कोर कर लेते हैं, बहुत आसानी से। अच्छा, 3 साल के बाद आपको यूपीएससी देना होता है, तो इसलिए आप उतना ज़्यादा उसमें कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। जबकि आईआईटी से फ़ायदा ये होता है, ये जो लोग नीट निकाल रहे हैं या जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके पास एडवांटेज है कि उनकी मेहनत करने की आदत पड़ रही है। अल्टीमेटली तो यही काम आने वाली है आगे। तो तीसरा या चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एलुमनाई होते हैं वहाँ के, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि आपका ही बैचमेट आगे जाके डीएम बन रहा है, आगे जाके वो सेक्रेटरी बन रहा है किसी डिपार्टमेंट में, तो वो कॉन्टैक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर वहाँ से निकलते हैं जो आगे जाके बहुत अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत यंग एज पे ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरव्यूज़ में जो प्रेफरेंस मिलती है, आप आगे जाते हैं, जो आपके पास आईआईटी का टैग होता है आईआईटीएन का, तो आगे आप जा रहे हैं। अगर आगे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गया या किसी और जॉब इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, तो वहाँ आपको एडवांटेज मिलता है बीइंग एन आईआईटीएन। आपको प्रेफरेंस मिलती है कि आप एक टफेस्ट एग्ज़ाम आपने निकाला है इंडिया का, तो वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे फ़ायदे थे। और लास्ट, इंटरनेशनल स्टडीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने बताया आपको, अब तो 25 कंट्रीज़ ने, और उसमें भी प्रोमिनेंटली जो यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पे पहले ही आप सुनते थे कि वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, आपके भैया, आपके ख़ानदान में कोई पढ़ रहा है, यूएसए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, चाइना, तो अब उन कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कंडक्ट कराइए आप आईआईटी का एग्ज़ाम, हमारे यहाँ से भी बच्चे लेकर जाइए यहाँ पे। तो आप सोचिए कि अब इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए कोई आगे हायर एजुकेशन में बच्चा जा रहा है, तो आईआईटीएन का अगर टैग है तो उसको वहाँ पे डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ये हो गया कि भाई आईआईटी से हमें मिलता क्या है और हमें क्यों इसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों आईआईटीएन बने। इसके लिए सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि आप जब आईआईटी में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद आपके साथ क्या क्या फ़ायदे जुड़ते चले जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको पता है कि हर साल कितने इंजीनियर्स हैं जो पास आउट होते हैं इंडिया से। डेटा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कोई नॉर्मल गेस करेगा कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 मिलियन, 15 लाख इंजीनियर्स, बल्कि इससे ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे। 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल इंडिया से पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। अच्छा, कोई गेस होगा कितने इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे? किसी का कोई रफ गेस? क्या लगता है आपको, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे इंडिया में? कोई रफ गेस? सब मिला के, आईआईटीज़, नॉन आईआईटीज़, प्राइवेट, सब? नो गेसिंग। मोर देन 4,000, 4,000 या उससे भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में। अब सवाल ये उठता है कि कितने, इन 15 लाख में से कितने आईआईटी से निकलते हैं। तो अभी जो करंट न्यू हमारे पास स्टेटस है, वो उसके अकॉर्डिंग नियरली 15,000 सीट्स हैं आईआईटीज़ में, सारे न्यू आईआईटीज़ और ओल्ड आईआईटीज़ अगर हम मिला लेते हैं। और उनमें से भी जो टॉप 7 आईआईटीज़ हैं, ओल्ड आईआईटीज़ जो बोले जाते थे आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, वहाँ से कितने लोग निकलेंगे 7 आईआईटीज़ से? वो नियरली 5,000 है, उसके अराउंड का फिगर है। जहाँ आपको मैंने भी आपको जो पर्क्स गिनाए हैं आईआईटी में पढ़ने के, एक आईआईटी कॉलेज में, तो वो सारे पर्क्स उन टॉप 7 आईआईटीज़ में जाने वालों को मिलते हैं। कोई भी आईआईटी हो, वो टॉप ऑफ द लिस्ट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, चेन्नई, ये वो 7 आईआईटीज़ हैं जो पुराने आईआईटीज़ माने जाते हैं।
तो यहाँ से अराउंड 5,000 to 6,000 बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। हमने देख लिया कि भाई आईआईटी में जाने पे हमें क्या मिलता है, हम कैसे एंटर हों, क्या तरीका है, तो कौन सी बॉडी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। अब तक इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट कराता था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसको जैब जेई एपेक्स बॉडी कंडक्ट कराएगी इस एग्ज़ाम को। मतलब एनटीए बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ये 2 महीने 3 महीने पहले ही इसको चेंज किया गया है, जब जेई मेंस और एडवांस का नोटिफिकेशन आया है। तो जेई एपेक्स बॉडी इसको कंडक्ट कराएगी। ये कोई भी बच्चा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये है कि वो 12th पास आउट होना चाहिए, यानी अपेयरिंग होना चाहिए। और एक तो अटेम्प्ट वो 12th अपेयरिंग में दे सकता है, दूसरा अटेम्प्ट वो 13 में दे सकता है, यानी 12th पास करने के बाद, और एक और तीसरा अटेम्प्ट वो जेई मेन का दे सकता है जब वो 14 में हो, या कह सकते हैं 12th पास करने के 2 साल बाद या दूसरे साल। यानी टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। हर साल आप 2 बार इसको दे सकते हैं, यानी टोटल 6 टाइम्स हो गया अगर हम ऐड करें तो हर साल हम 2 बार इसको दे सकते हैं। एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी बेस्ड, यानी ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ कर दे सकते हैं। इसमें जो इसकी टेस्टिंग एजेंसी होगी, जैसे कि जैब है इस बार, वो डिसाइड करेगा कि सेंटर्स आपके अलॉट होंगे, उन सेंटर्स में जाकर आपको वो एग्ज़ाम देना होता है। ड्यूरेशन 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। जो जेई मेन की बात कर रहा हूँ, जेई एग्ज़ाम 2 पार्ट में कंडक्ट होता है, एक जेई मेन, एक जेई एडवांस। मैं जेई मेन की बात कर रहा हूँ अभी। जो जेई मेन एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है और उसको कौन एजेंसी कंडक्ट कराती है, हमें कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं और हम कैसे उस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो ड्यूरेशन है उस एग्ज़ाम का 3 आवर्स का। लैंग्वेजेस क्या हैं? लैंग्वेजेस, ये कई सारी लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है। नेशनैलिटी इंडियंस दे सकते हैं, एनआरआईज दे सकते हैं, और मैंने जैसे बताया कि 25 कंट्रीज़ में अलाउ हो गया है, तो और भी जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो भी दे सकते हैं। एज में कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, यही है कि आप 12th अपेयरिंग होना चाहिए जब आप पहला अटेम्प्ट लिख रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या रिक्वायर्ड है, यानी आपके पास 11th 12th में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तो पीसीएम मस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसके अलावा आपके पास एक लैंग्वेज होगा इंग्लिश, और उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर जो भी आपने ले रखा हो। मार्क्स कितने रिक्वायर्ड हैं? इस अभी तक कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीनों पहले तक आप बोल सकते हैं 75% क्राइटेरिया था कि आपके 12th में 75% होने चाहिए, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। लेकिन अब ये एज क्राइटेरिया हटा दिया गया है, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। सॉरी, जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है। टोटल अटेम्प्ट्स कितने, जैसे मैंने बताया आपको, जेई मेन में आप 3 बार दे सकते हैं, एक 12th अपेयरिंग में, एक 12th के बाद, एक उस नेक्स्ट ईयर दे सकते हैं आप, ठीक है। एक 12th में, 13 में, 14 में, ऐसे समझ सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं? अगर आप जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं? तो एनआईटी के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज़ के लिए, जीएफटीआई के लिए, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वहाँ आप जेई मेन के बाद ही आपके स्कोर पे, आपको बेस्ड अपॉन योर स्कोर इन जेई मेन आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है यहाँ पे। 20 MCQs हैं, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें 30 क्वेश्चंस का आया है सेक्शन ए में, तो वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे भी अपडेट करते रहेंगे सर जब आपकी क्लासेस होंगी, कि जो भी चेंजेस आते रहते हैं। ये जनरल पैटर्न है जो अब तक होता था। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होते थे पीसीएम में। तो अब हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, जो मार्किंग स्कीम है, और उसमें इनकरेक्ट के लिए -1 है, अनअटेम्प्टेड के लिए जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो 5 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, एनएटी न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब नहीं थी। अब लेटेस्ट जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग उसमें भी उन्होंने माइनस मार्किंग ऐड कर रखी है। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ जो इसका जो इसकी जो बॉडी है जो इसको कंडक्ट कराएगी, जैब, वो डिसाइड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स की बेसिस पे, कितनी भी सीट्स हैं उसकी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। जैसे कि एक रफ फिगर है आपका कुछ लास्ट ईयर्स का, बल्कि लास्ट ईयर्स का ही, आउट ऑफ 12 लाख स्टूडेंट्स, यानी 12 लाख बच्चे बैठे थे उसमें, जिसमें 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए थे जेई एडवांस के लिए, यानी जेई मेन क्वालिफाई कर गए थे ये बच्चे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं हमारे पास जेई एडवांस में? हम जेई एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी 2.5 लाख बच्चे जो
सेलेक्ट हुए हैं जेई एडवांस के लिए, दे आर जेई मेन क्वालिफाइड, और ये उन कॉलेजेस के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया आपको, NITs के लिए, IIITs के लिए डायरेक्ट जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्कोर इन जेई मेन, ठीक है, जो भी परसेंटाइल उनका है, जो भी स्कोर है वहाँ पे। और दूसरा ये कि वो जेई एडवांस लिखने के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है, जो कि IIT का रास्ता वहाँ से होकर जाता है, यानी जेई मेन क्वालिफाई करके आपको IIT नहीं मिलेगा, आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेई एडवांस में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो आप 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स लिख सकते हैं 2 ईयर में। जैसे कि देखें, अगर तो वहाँ पे आप 12th अपेयरिंग में हैं तो आपने जेई मेन क्वालिफाई कर लिया है, तो जेई मेन 2 बार हो रहा है, तो 2 अगर आपने दोनों अटेम्प्ट्स लिए हैं जेई मेन के, तो उसमें बेस्ट स्कोर सेलेक्ट किया जाएगा, दोनों में बेस्ट ऑफ 2 में जो भी होगा उसके बेसिस पे आपका जेई मेन में सिलेक्शन होता है या नहीं, उसमें जो कट ऑफ आएगी उस पर आप डिसाइड करेंगे देखकर। उसके बाद फिर आप जेई एडवांस लिखेंगे उसके लिए। तो इस तरह से जेई एडवांस आप 2 बार लिख सकते हैं, यानी एक तो 12th अपेयरिंग वाला अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर जेई एडवांस लिखने का मौका मिलेगा। मान लीजिए उसमें नहीं होता है आपका, तो फिर आप 13 वाला जेई मेन देंगे, और 13 वाला जेई मेन देने के बाद वहाँ अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए, तो फिर आप उसके बाद जो जेई एडवांस होगा वो आप दे सकते हैं, यानी जेई एडवांस सिर्फ 2 ही बार दे सकते हैं, जेई मेन देने का आपके पास 3 बार मौका रहता है। अब जेई एडवांस का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर 1 3 आवर्स का होता है, पेपर 2 3 आवर्स का, और ये दोनों एक दिन में ही देने होते हैं। 6 आवर का पेपर, एक मॉर्निंग शिफ्ट में, एक इवनिंग शिफ्ट में। क्या रहता है पैटर्न? वैसे तो जेई एडवांस का पैटर्न कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इसको जेई एडवांस को मुश्किल, जो सबसे मुश्किल बनाने वाली चीज़ है वो इसका अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आप जब जाएंगे और आपको पेपर मिलेगा, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस बार जेई एडवांस का पेपर पैटर्न क्या था। उससे पहले सिर्फ स्पेकुलेशंस होते हैं जो लोग लगाते हैं, कोई ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं बोल सकता कि इस ईयर ऐसा ही पैटर्न आएगा। तो जेई एडवांस्ड इस तरह की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें नॉर्मली क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिंगल करेक्ट भी आ सकते हैं, यानी आपके 4 ऑप्शंस में से एक ही सही हो, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वैल्यूज़ भी टाइप करनी पड़ सकती हैं। इवन पिछले सालों में तो ऐसा हो रहा था कि डेसिमल तक को टाइप करना पड़ रहा था वहाँ पे, कि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है 1.12, तो इस तरह से वहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस या 2 प्लेस तक आपको टाइप करना पड़ रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंटीजर टाइप, अब इस बार ऐसा हुआ है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे तो उसमें राउंड ऑफ करके जो पैटर्न आया है कि अब आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, अब आपको डेसिमल वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सब आपको बहुत डिटेल में आपकी जब क्लासेस होंगी तो आप टीचर्स आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल नेचर का ये पेपर रहता है आपका जेई एडवांस का। तो नॉर्मली इस तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इवन मार्किंग स्कीम काफ़ी अजीब तरह की होती है इसकी, कि मार्किंग स्कीम में आप देखेंगे जैसे कि सब्जेक्टिव पेपर जब होता है आपका बोर्ड्स का, तो उसमें जो मार्किंग स्कीम आप देखते हैं कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 4 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैसा लिखा है। तो ये इस तरह की मार्किंग यहाँ पे इस तरह के ऑब्जेक्टिव पेपर में भी हो जाती है कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आपको हो सकता है 2 भी मिल जाए, 1 भी मिल जाए, और उसमें मतलब मान लीजिए अगर मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपके 3 करेक्ट होने चाहिए थे, आपने 2 ही लिखे, तो उस पर भी हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 0 मिलेगा। तो पार्शियल मार्किंग भी होती है यहाँ पे जेई एडवांस में। कॉलेजेस जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक तो हमें सबको पता है कि हम IITs में जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रैंक क्या आती है। अगर हमारी रैंक 5000 या 6000 के अराउंड है तो हमें वो टॉप 7 IITs जो हैं वो मिलते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज IISc बैंगलोर, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से जो जाना जाता है, जो कि रिसर्च के लिए आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अच्छा, इस कॉलेज में आप एक और एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हैं। कोई बताएगा कौन सा एग्ज़ाम है अगर किसी को पता हो? हाँ बेटा, राइट, बिल्कुल सही जवाब है। KVPY एग्ज़ाम जो आपका 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, 13 में भी होता है, SA, SX और SB के नाम से। जो बच्चे अभी 10th में हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो 11th वाला KVPY दे सकते हैं। अभी लास्ट ईयर के बच्चों ने अभी दिया है KVPY, लास्ट संडे को ही एग्ज़ाम हुआ है उसका। तो ऐसे जो पेपर था तीनों ही हुए हैं। तो जो बच्चे मतलब KVPY के लिए एस्पायर कर रहे हैं, यानी एक शॉर्टकट है रिसर्च में। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यू डोंट नीड टू क्वालिफाई फॉर जेई मेन और जेई एडवांस, आप एक शॉर्टकट ले सकते हैं। यानी आपको KVPY के लिए प्रिपेयर करना होगा, और KVPY को SA लेवल पे क्वालिफाई करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली SA, SB और SX लेवल पे। तो आप रिसर्च में अगर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाता है अगर आप 11th में KVPY क्वालिफाई कर लेते हैं तो। इसके अलावा पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स भी हैं, कुछ 6-7 पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों को जनरली नहीं पता होता है कि जेई एडवांस में रैंक लाने के बाद आपको यहाँ भी एडमिशन्स मिल जाता है और वहाँ भी प्लेसमेंट अच्छा मिलता है। क्या
आपकी जर्नी में जो जेई की जर्नी है, आपकी लंबी जर्नी है जिसमें आपको जेई मेन देना है, फिर जेई एडवांस देना है, उसके बाद जाकर कहीं आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है, तो क्या इन एग्ज़ाम्स, क्या ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनके बारे में हम सुनते हैं, एनटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई, इनका क्या रोल है आखिर इतने जेई के लिए? और जनरली हम लोग सुनते रहते हैं कि जेई टॉपर्स को आपने देखा होगा, इनके इंटरव्यूज़ को देखा होगा, तो आपने रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि कोई जेई टॉपर ऐसा आपको मिले जिसने अपनी लाइफ टाइम में एनटीएससी नहीं दिया हो, ओलंपियाड्स ना दिए हों और केवीपीवाई ना दिया हो और वो जेई टॉप कर गया हो, इवन जेई में टॉप 50 में रैंक ले आया हो। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। यानी ये एक ट्रेडिशन है, ये एक सेट पैटर्न है कि जो लोग जेई में टॉप कर रहे हैं या टॉप 100 में रैंक ला रहे हैं, तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं स्टार्टिंग से ही 10th लेवल से। जो एनटीएससी का एग्ज़ाम है आपका वो 10th में होता है, 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो बच्चे 10th में अपीयर कर रहे होते हैं वही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अच्छा, आप में से सभी बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे हमारे लिए तो ये रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल रेलेवेंट है। इस बार एनटीएससी डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता था। और मतलब अब तक तो उसके स्टेज 2 भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेज 1 भी नहीं हुआ है और न्यूज़ ऐसी आ रही है कि शायद फॉर्म फिर से निकाल दें वो लोग। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप एनटीएससी का फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप वही आपका काफ़ी है, वही फॉर्म के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, अभी भी आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन अभी आपके पास ओपन है पूरी तरह से, वो है केवीपीवाई, और ओलंपियाड्स तो हर क्लास में ओपन रहते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं? इनकी सबसे बड़ी हेल्प ये होती है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न इनका रहता है और जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है क्वेश्चंस का, वो कहीं ना कहीं कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो ओलंपियाड्स के मतलब ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्चुअली रिपीट हो गए हैं जेई में। और ऐसा बहुत बार आप सुनेंगे ये चीज़, बहुत सारे मेंटोर से सुनेंगे कि वो बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चे ओलंपियाड्स लगातार दे रहे थे, केवीपीवाई के एग्ज़ाम पे उन्होंने अपीयर किया, इन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस वहाँ पे जेई में उनको देखने को मिल गए, सेम पैटर्न पे डिजिट्स चेंज रही होंगी या वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सेम रिपीट हो गए। तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इन एग्ज़ाम्स के थ्रू जेई निकाल लेना, इवन एडवांस लेवल पर भी। तो ये एग्ज़ाम्स हेल्प करते हैं, आपको तैयार करते हैं आगे के लिए। अगर आप 11th में हैं तो जेई 2 साल बाद देना है, लेकिन केवीपीवाई उसी साल देना है आपको। तो जो एग्ज़ाम उसी साल आपके सामने, उसके लिए आप ज़्यादा सीरियस रहते हैं और फिर उसकी तैयारी में जो आप टाइम लगाते हो वो अल्टीमेटली आगे जाकर आपको हेल्प करता है। और प्लस एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि एक इंस्टीट्यूट है IISc बैंगलोर, वहाँ जेई एडवांस भी बच्चे जा रहे हैं और केवीपीवाई से भी जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है क्वेश्चंस को पूछने का वो मैच करता होगा, सिमिलर होता होगा। तो ये एग्ज़ाम्स हेल्प करते हैं और हम इनकी तैयारी भी आपके लिए कराते हैं साथ साथ। जैसे कि एक कोट आपके सामने है, इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ यू आर ट्वाइस डिफीटेड इन द रेस ऑफ लाइफ, विद कॉन्फिडेंस यू हैव वन इवन बिफोर यू हैव स्टार्टेड। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है और ये एग्ज़ाम्स कॉन्फिडेंस ही इम्पार्ट करते हैं आपके अंदर कि नहीं आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसआईपी के बारे में जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एसआईपी क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा एसआईपी का ये है कि टाइम सेविंग है, आपका इवनिंग पूरा सेफ है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के बगैर ये एग्जाम्स नहीं निकलते हैं, सेल्फ स्टडी टाइम होगा तभी कर पाएंगे आप। तो सिर्फ इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको इवनिंग में टाइम मिलता है, पूरी गाइडेंस आपको स्कूल टाइम में ही मिल जाती है, तो सो दैट कि आप इवनिंग में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स की साथ साथ हम साइमल्टेनियस आपकी तैयारी जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करते हैं तो जेई की प्रिपरेशन में ऐसा ना हो बोर्ड एग्ज़ाम्स कहीं पीछे छूट जाए। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो जो चीज़ें नेसेसरी हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है कि बोर्ड्स में आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सारी गाइडेंस भी आपको साइमल्टेनियसली साथ साथ मिलती रहेगी। कंपटीशन लेवल प्रिपरेशन जैसे अभी हमने बताया आपको, साथ साथ जो ओलंपियाड्स, केवीपीवाई, एनटीएससी इस तरह के एग्जाम्स बीच में आ रहे हैं, आपके लिए मोस्टली केवीपीवाई और ओलंपियाड्स ही रेलेवेंट है। उन सब की गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहेगी। फॉर्म्स कब आ रहे हैं, आपको क्यों देना चाहिए, एनटीएससी, ओलंपियाड, केवीपीवाई मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। हाँ, एक चीज़ और रहती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि स्कूल का जो सिलेबस चल रहा होगा, जो बच्चे नॉन एसआईपी के होंगे और वहाँ जो सिलेबस चल रहा होगा, क्योंकि एग्जाम्स जो होंगे आपके इंटरनल कंपैरेटिव एग्जाम्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, ये सब आपको स्कूल्स के ही देने हैं। तो क्या हम सिलेबस को मैच करके चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, और स्कूल से पूरी तरह से इन अकॉर्डेंस टू द स्कूल होगा। यहाँ के जो आपके टीचर्स हैं उन सबसे लगातार डिस्कस करते हुए, जो आपके टीचर्स होंगे ग्रेविटी के, वो भी लगातार कॉन्टैक्ट में रहेंगे ताकि आप उसके साथ पेस से पेस मिलाकर चल सकें। वहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं आप उससे आगे ही रखा जाए आपको, ठीक है, ये एक पूरी कोशिश रहेगी। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी डायलेमा में नहीं रहना है कि आपका स्कूल सिलेबस अलग रहेगा और यहाँ से पूरा उसमें किसी तरह की कोई डाइकोटमी होगी, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इन अकॉर्डेंस टू द स्कूल सिलेबस चलेंगे हम लोग। रिविजन्स एंड टेस्ट आर द बेस्ट, मतलब टेस्ट से बेटर रिवीजन का कुछ भी नहीं हो सकता। टेस्ट
सबसे अच्छी चीज़ है रिवीजन करने के लिए। तो टेस्ट आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, जैसे कि मैम ने भी आपको बताया था। तो टेस्ट यहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में आपके होते रहेंगे, वो भी जेईई पैटर्न टेस्ट भी और बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी, ताकि आप दोनों के लिए साइमल्टेनियसली तैयार करते रहें। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जेईई एडवांस्ड में, ये टॉप रैंक्स हैं आपकी। अक्षत AIR 246, ये जेईई एडवांस की रैंक्स हैं, सक्षम 264। नेक्स्ट है नीट में इस बार दो जो टॉपर्स हैं हमारे यहाँ पे, जाहिद खान AIR 180, ये एम्स में इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, और मोहम्मद अजान 207, इनका दोनों के स्कोर्स भी आपके सामने हैं, 700 आउट ऑफ 720। ये अभी हमारा क्लास 10th का सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट है ICC बोर्ड का, हमारे जहाँ पे टाइप्स जैसे CMS महानगर में। तो वहाँ पे जो हम बैच पढ़ा रहे थे, हमारे 9th से टाइप्स हैं कई जगह पे, तो वहाँ पे जो बैच 2 साल से, यानी जो 4 ईयर प्रोग्राम में था एक तरह से जेईई के लिए, तो वो 9th से इनरोल हो गए थे बच्चे। तो उन्होंने अभी सेमेस्टर 1 में 3 सिटी टॉपर्स हैं जो हमने दिए हैं पूरे ऑल ओवर द लखनऊ। किसी CMS में इस तरह का रिज़ल्ट नहीं आया है जो उस CMS महानगर का ग्रेविटी बैच से आया है। ये तीनों टॉपर्स हैं अभी सेमेस्टर 1 के, उन लोगों ने भी सेमेस्टर 1 भी दिया हुआ है। इसके अलावा पेरेंट टीचर्स मीटिंग के थ्रू हम लगातार आपके कांटेक्ट में रहेंगे। आप को लगातार बच्चे की जो रिपोर्ट है वो मिलती रहेगी, हर मंथ मिलती रहेगी, सो दैट कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका टाइमली सोल्यूशन निकाला जा सके। एंड मैं एक कोट से अपनी बात ख़त्म करूँगा। अराइज, जो स्वामी विवेकानंद का कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच्ड। थैंक यू सो मच। ओवर टू अशफाक सर। थोड़ा सा मैं जो SIP प्रोग्राम है उसका रिज़ल्ट्स के बारे में कुछ शेयर करूँगा। तो ओवरऑल रिज़ल्ट जो अगर हम बात करें 2021 की, तो इस टाइम पे हमारा जो रिज़ल्ट था उसमें जेईई मेन में हमारे ग्रेविटी से 174 स्टूडेंट्स ने 99 और 99 से ज़्यादा परसेंटाइल अचीव किया था। 174 स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ 99 परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ। ये 2021 लास्ट ईयर का रिजल्ट था। ये नंबर बहुत ज़्यादा है। 174 स्टूडेंट्स का 99 परसेंटाइल से अबव था। 99 परसेंटाइल वाले सभी को NIT मिल जाता है, इवन 98 वालों को भी मिल जाता है। तो ये नंबर इतना ज़्यादा था, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं लखनऊ में ऑलमोस्ट जितने भी नेशनल ब्रांड्स हैं कोचिंग इंडस्ट्री में सभी प्रेजेंट हैं, सारे ही प्रेजेंट हैं। तो सभी का रिजल्ट अगर सम अप कर देंगे, जितने भी 7-8 ब्रांड्स लखनऊ में हैं, तो टोटल नंबर 50 के अंदर ही होगा। हमारा लोन 174 है। हमारा जो जेईई एडवांस में सिलेक्शन है वो 250 से ज़्यादा है। 250 से ज़्यादा रैंक जेईई एडवांस में देने वाले इंस्टीट्यूट इंडिया में मैक्सिमम 10 है, बस 10 से ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जिनका नंबर 1000 में भी है, 2000 में भी होगा। कुछ बड़े ब्रांड्स कोटा में है दिल्ली में, लेकिन 200 प्लस में जाने वाले इंस्टीट्यूट टोटल मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जेईई एडवांस में 1-2 रैंक लाना भी मुश्किल रहता है। जेईई एडवांस इतना चैलेंजिंग है, जो लोग इसको पढ़ाते हैं उनको बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब ये हमेशा एक चैलेंजिंग रहता है पढ़ाना इसको। और बच्चों के लिए जिनको पढ़ना अच्छा लगता है कि हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत यूनिक करना चाहते हैं, तो उनके लिए जेईई एडवांस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही रिनाउंड है, प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। तो हमारा ये मैंने सिलेक्शन बताया आपको। अच्छा, अब मैं नीट की बात करूँ, नीट में जो सिटी की टॉप 5 रैंक्स थी, टॉप 5 में से टॉप 4 ग्रेविटी की हैं, तो टॉप 10 में 8 रैंक्स ग्रेविटी की हैं। तो हमारा जो, अब मैं सिर्फ SIP का रिजल्ट बता रहा हूँ लास्ट 5 ईयर का। हमारा फर्स्ट ईयर जो SIP बैच था उसमें हमारे पास 40 स्टूडेंट्स थे। 39 ने इसमें से जेईई मेन क्वालिफाई किया था, जेईई मेन निकाला था, और 39 ने ऑलमोस्ट सभी सेलेक्ट हो गए थे, और 31 ने जेईई एडवांस निकाला था। ये लखनऊ के लिए बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था, और ग्रेविटी का फर्स्ट रिजल्ट था। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया ग्रेविटी क्या है, रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट था 2017 में, हमारे पास 85 स्टूडेंट थे SIP प्रोग्राम में। 85 में 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे, और
उसके बाद जो हमारा एक बहुत ही हिस्टोरिकल रिजल्ट है, 200 हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे SIP प्रोग्राम में 300 अराउंड। ओके, ये रिजल्ट लगा हुआ है, SIP का रिजल्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, आई थिंक 2-3 वीक पहले आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में है ये हमने पूरा रिजल्ट अपना पब्लिश किया था। ये SIP का रिजल्ट है, 2018 का रिजल्ट देखिए कैसा है, 277 आउट ऑफ 296, ये JEE मेन निकाला था इन्होंने, इतने ज़्यादा नंबर, और इसमें से 191 स्टूडेंट्स ने एडवांस निकाला था। ये किसी भी एक इंस्टीट्यूट का बेस्ट एवर रिजल्ट है इन द कंट्री, और किसी भी सिंगल स्कूल का भी बेस्ट एवर है। एक स्कूल से इतने सिलेक्शन आज तक कभी किसी स्कूल से पूरी इंडिया में कहीं नहीं हुए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया संडे का रिजल्ट है, डेट आई थिंक क्या थी, डेट मैं आपको बता दूंगा, उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये बेस्ट एवर रिजल्ट है, और अभी लास्ट ईयर उसके बाद 3 रिजल्ट्स और हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स हैं। तो SIP प्रोग्राम तो लखनऊ में अगर बात कहीं आती है तो ग्रेविटी का नाम आ जाता है। मतलब इस प्रोग्राम को हम ग्रेविटी ने इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट कर दिया है, अब कहीं पे SIP की बात आती है ग्रेविटी का नाम आ जाता है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज हैं SIP को लेके, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर SIP नहीं है, लोग चाहते हैं स्टार्ट करना, हर जगह हम भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हमारी भी लिमिटेशंस है, और हमें भी देखना है रिजल्ट हम कहाँ स्टार्ट करें जहाँ हम रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये अच्छा, एक पॉइंट और बता दूँ, इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता आपको JEE नीट निकालने के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम लोग क्या करते थे, बच्चा मॉर्निंग में स्कूल गया, 2 बजे स्कूल से आया, लंच लिया, 4 बजे कोचिंग चला गया, फिर अराउंड 8:39 पे घर आ रहा है। तो टाइम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, इवन स्कूल का होमवर्क करना है तभी टाइम नहीं है, कोचिंग का होमवर्क करना है तभी टाइम नहीं है। जब सारे ही बच्चे वैसे तैयारी कर रहे थे तब उन्हीं में कंपटीशन था। आज की डेट में इंडिया के कुछ सिटीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ओनली फ्यू सिटीज़, लखनऊ में है, कोटा में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, ये मेन 4 सिटीज़ आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं और भी है, कुछ इंदौर में हो गया है, अहमदाबाद में हो गया, लेकिन बहुत कम सिटीज़ में। अगर SIP आपको मिल रहा है तो कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि दूसरा प्रोग्राम ले लें हम लोग, ये तो बहुत अच्छा है। स्कूल टाइम में आप बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इवनिंग में आप फ्री हैं, अपना सेल्फ स्टडी करिए, टेस्ट दीजिए, इवन आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है, बहुत सारे स्कूल्स इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास खुद ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें लिमिटेड प्लेसेस पे जाना है, क्योंकि इसके लिए जो फैकल्टी पूल है बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड फैकल्टी पूल है। हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए आई थिंक 10 से ज़्यादा सेट हैं जो सिर्फ इसी प्रोग्राम के में स्पेशलाइज्ड हैं। मैक्सिमम ग्रेविटी में ही अपना एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, या हमने कुछ ऐसे प्लेसेस से उनको लिया है ग्रेविटी में जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, एक ऐसे स्कूल में, इतना प्रेस्टिजियस स्कूल में आपको मिल रहा है, अभी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो 10th के बाद बहुत सारे पेरेंट्स, अब तो सीरियस रहते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे स्कूल में जाना चाहते हैं जहाँ SIP चल रहा हो। लखनऊ में तो थोड़ा कल्चर बन गया है, तो लमाटे में आपको मिल रहा है, तो आई थिंक एक प्रेस्टिजियस स्कूल के अंदर आपको सब मिल रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हमारे साथ में कुछ ग्रेविटी टीम के मेंबर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, और नॉन एकेडमिक्स के भी कुछ लोग हैं। आपकी क्वेरीज हम लेना चाहेंगे, जो भी क्वेरीज हो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेरीज हम लेना चाहेंगे। हमारे टीचर्स हैं, उनसे पर्सनली मिल सकते हैं, हमसे पर्सनल क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी क्वेरीज हम लेना चाहेंगे। ठीक है, कपूर मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने जो ग्रेविटी में आपको बता दूं फैकल्टी पूल कैसा है, ये आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। तब तक प्लीज़ आप लोग आ जाएं स्टेज पे, सब लोग मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ ग्रेविटी में जो लखनऊ में जो ब्रांड्स हैं, जैसे आप FITG जानते होंगे, FITG के जितने भी HODs थे, सारे HODs ग्रेविटी में है। वो इवन रेजो एक बड़ा ब्रांड है, रेजो के भी ऑलमोस्ट सारे HODs ग्रेविटी में हैं। सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम लखनऊ, जो कोटा है, कोटा से भी काफ़ी फैकल्टीज़ हैं, और इवन आपने बहुत इंपॉर्टेंट नेम सुना होगा, सुपर 30 पटना, सब लोग जानते होंगे, मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की। मिस्टर आनंद कुमार जी एक प्रोग्राम चलाते हैं,
आनंद कुमार जी, हमारा जो SIP चलता है लखनऊ में, उस प्रोग्राम में हमारे बच्चों से मिलने आते हैं। और आनंद कुमार जी के पास जो 4 बेस्ट फैकल्टीज थे, उनमें से अभी 3 फैकल्टीज, 4 आउट ऑफ 4, 3 फैकल्टीज तो ग्रेविटी में है। उनमें से एक आज प्रेजेंट है, पंकज सर IIT धनबाद से हैं। पंकज सर का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मतलब मैंने बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जिनका मैं खुद फैन हूँ, उनमें से एक पंकज सर भी हैं। पंकज सर ने अपने जो करियर का फर्स्ट बैच पढ़ाया था, जस्ट अपना बीटेक के बाद, वो पुणे में था। एक ऑर्गेनाइजेशन है दक्षिणा फाउंडेशन, वहाँ गरीब बच्चों को सेलेक्ट करके फ्री में एजुकेशन दी जाती है। तो उस बैच में मैं एज ए गेस्ट लेक्चर क्लासेस देने जाता था, मैं भी फ्री में ही पढ़ा रहा था वहाँ। तब मेरी पंकज सर थे, वहाँ बहादुर सर थे और दिनेश सर थे, तीनों ये सुपर 30 में पहले से उस बैच को पढ़ा रहे थे। उस बैच में भी 80 स्टूडेंट्स थे, जिसमें कि 79 स्टूडेंट्स IIT में सेलेक्ट हो गए थे। अगेन हिस्टोरिकल रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट हमारे पास बहुत थे। उस रिजल्ट का यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो डिफरेंट बैच है। उसको हमने क्लेम नहीं किया है, क्योंकि उसको हम क्लेम करना भी नहीं चाहते। हम लोगों ने पढ़ाया था, लेकिन दक्षिणा फाउंडेशन को रन करता है। ठीक है, अभी पंकज सर का इंट्रोडक्शन हो गया। पंकज सर के पास खड़े हुए हैं ABD सर, अब्दुल हमीद सर। आपने IIT चेन्नई से बीटेक किया है, आपकी रैंक बहुत बढ़िया थी, 335 थी। और अब्दुल सर बहुत लकी हैं, अब्दुल सर के 3 ब्रदर्स हैं, टोटल तीनों IITian हैं। पेरेंट्स भी इनके बहुत लकी हैं कि 3 बच्चे तीनों IITian हैं। और अब्दुल सर को हम बहुत बैंगलोर में रहते थे, वैसे सर का घर वाइजैग में है। तो मुझे एक स्टूडेंट लखनऊ में था, वो बैंगलोर में पहले 11th किया था, 12th में किसी वजह से IIT की तैयारी लखनऊ आ गया था। तो मैंने उससे पूछा, फिजिक्स बहुत अच्छी थी, उससे मैंने पूछा कि आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी क्यों? से अब्दुल सर का नाम लिया। तो मुझे अच्छे टीचर्स हमेशा चाहिए होते थे। मैंने अब्दुल सर को कॉल किया कि वुड यू लाइक टू जॉइन ग्रेविटी? तो अब्दुल सर ने एक एक्सक्यूज़ दिया कि हमारी लैंग्वेज भी वहाँ से मैच नहीं करती है और हमारा स्टेट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो अब्दुल सर ने मना कर दिया। फिर मुझे पता चला बहुत अच्छे टीचर हैं, फिर मैंने कॉल किया तो अब्दुल सर ने बोले ठीक है मैं आ सकता हूँ, कुछ कंडीशंस बताई, लेकिन मुझे एक डेडलाइन दी थी। आप मुझे 12th ऑफ कोई मंथ था, शायद मंथ याद नहीं है, 12th के पहले डेडलाइन दी थी कि मुझे आप अप्रोच कर लीजिएगा, अदरवाइज आई विल बी ज्वाइनिंग सम अदर इंस्टीट्यूट इन तिरुपति। और मैं कॉल करने में लेट हो गया, 3 डेज लेट हो गया। 15 को मैंने कॉल किया, तब अब्दुल सर ने तिरुपति ज्वाइन कर लिया था। मैंने कॉल किया, बहुत रिक्वेस्ट करी अब्दुल सर को। अब्दुल सर ने बोला कि मैं मैनेजर इज अ वेरी, मेरा जो डायरेक्टर है इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस इंस्टीट्यूट। मैंने सर से बोला क्या एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया? बोला अभी तो साइन नहीं किया है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, सर से बोला प्लीज़ बैंगलोर एयरपोर्ट तक आइए। सर अग्री कर गए। तो मैं यहाँ से फ्लाइट लेके बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँचा। सर वहाँ से 4 घंटे की बस की जर्नी करके बैंगलोर एयरपोर्ट पे आए और बिलीव करिए मैंने सर को जाने नहीं दिया, एयरपोर्ट से लेके लखनऊ आ गया रिजाइन करा के। वहीं मैंने बोला एयरपोर्ट से ही मेल करिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी। मतलब ऐसे ही सारे टीचर्स की जर्नी है। लखनऊ में जो ग्रेविटी में टीचर्स का पूल ऐसे ही बना हुआ है। अभी हमारे पास 50 से ज़्यादा सीनियर टीचर्स हैं। टोटल टीचर्स तो जूनियर सीनियर मिला के 70 हैं। इसमें बहुत सारे टीचर्स IITians हैं और अराउंड 20 के अराउंड HODs हैं जो पहले HODs थे। जैसे मैं अब इंट्रोडक्शन कराता हूँ, रूबी मैम, रूबी त्रिवेदी मैम। तो ग्रेविटी के जो रिजल्ट पास्ट 2-3 ईयर्स में आए हैं, ग्रेविटी रूबी मैम और नीलम मैम दोनों लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। रूबी मैम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट केमिस्ट्री फिटजी में थी, फिटजी की HOD थी लखनऊ फिटजी में। और फिटजी के जो बहुत रिजल्ट अच्छे आए हैं पिछले 5 साल से, तो हमारा रिजल्ट अच्छा है। उससे पहले फिटजी ने रूल किया है 10 साल तक, और 10 साल में जो भी टॉप रैंक थी उन टॉप रैंक्स को प्रोड्यूस करने में फिटजी में 4 नेम थे। एक रूबी मैम केमिस्ट्री HOD एंड नीलम मैम आपके सामने खड़ी हुई है मैथ्स HOD, सचिन सेठ सर फिजिक्स के HOD थे, और एक बहुत फेमस टीचर हो आशीष मिश्रा सर। ये सारे लोग ग्रेविटी में हैं, 2 लोग नहीं, लिमिटेड टीम लेके आए हैं, सारी टीम नहीं ला सकते थे। उसके बाद अमित सर हैं जो आप 2018 का रिजल्ट देख रहे हैं। उन बच्चों को जिन लोगों ने पढ़ाया था जिस टीम ने, उसमें अमित सर थे, पंकज सर, बहादुर सर, मैं था उसमें, 2-3 टीचर और थे उसमें, बहादुर सर, मैंग सर, वाजपेयी सर। नंबर काफ़ी ज़्यादा था तो 7-8 टीचर इन्वॉल्व थे उसमें पढ़ाने में। उसमें से 2 लोग यहाँ प्रेजेंट हैं।
और उसके बाद में 5 हो गया और मृदुलिका मैम से अपना इंट्रोडक्शन हो गया, बायो की फैकल्टी है। और समीर सर फाउंडेशन डिवीजन हमारा देखते हैं और पूरा फाउंडेशन डिवीजन को सर ने बहुत अच्छा कर दिया। अभी लखनऊ का जो 9-10 का रिजल्ट जो भी आया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे ही टॉपर स्टूडेंट्स हमारे लोग थे। ठीक है, तो अभी आपकी क्वेरीज लेना चाहेंगे। काफ़ी पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया था कि हम किसी वजह से बाहर हैं, वेकेशन में हैं, हम एडमिशन ले रहे हैं लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। तो कुछ पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है जो ऑलरेडी हमारा सेंटर विजिट कर चुके थे। आपकी अगर क्वेरीज हम यहाँ एड्रेस आती, ठीक है। अगर आप और ज़्यादा क्वेरीज हैं तो अगर मैम अलाउ करें तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, या हम लोग दोबारा क्वेरी के लिए आपके यहाँ आ सकते हैं। वो स्कूल मैनेजमेंट आपको बताएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना क्वेरीज बता दें जिसको हम लोग आंसर करना चाहेंगे, हमसे हो या हमारी टीम से, जिससे भी क्वेरी करनी हो आपको, जो भी क्वेरीज हों। ये आईसीएसई और सीबीएसई का क्या? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। आईसीएसई सीबीएसई का क्या डिफरेंस है? देखिए 3-4 साल पहले तो बहुत डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए एक एज था कि जो सीबीएसई का करिकुलम है वही नीट का, वही जेईई का सिलेबस। लेकिन अभी आईएससी बोर्ड में जैसे कुछ चैप्टर से एक चैप्टर पहले हुआ करता, फेज इक्विलिब्रियम होता था। केमिस्ट्री की बात करूँ, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं था नीट जेईई में, नहीं आता था वो। आईएससी बोर्ड ने उसको हटा दिया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहाँ पे नहीं था, उन्होंने शामिल कर लिया। अभी आईसीएसई का सिलेबस और सीबीएसई का बिल्कुल सेम हो गया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और इवन अब गाइडलाइंस तो ये है कि अब सीबीएसई का करिकुलम ही सबको फॉलो करना है, यूपी बोर्ड को भी, आईएससी बोर्ड को भी, सीबीएसई बोर्ड को भी। सिलेबस सेम हो गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई जैसे स्कूल का करिकुलम है तो स्कूल तो चैप्टर सारे सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर सीबीएसई के अलावा हम लोग कुछ दूसरी बुक चलाना चाहते हैं स्कूल में, तो वो दूसरी बुक्स में क्वेश्चन बैंक थोड़ा डिफरेंट होता है, थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग जो आपका करिकुलम है स्कूल का वो तो फॉलो करेंगे ही, एक्स्ट्रा कुछ हो जाएगा। एनसीईआरटी का पैटर्न मीन्स जो करिकुलम एनसीईआरटी में गिवन है वो हम लोग फॉलो करते हैं, पूरा आराम से हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे कोई डिफरेंस नहीं है। बोर्ड के हम बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करा देते हैं, अगर बच्चा सीबीएसई में, आईसीएसई में हो। बोर्ड के पेपर्स में हल्का डिफरेंस है थोड़ा सा पैटर्न में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस और हमारा थ्योरी पार्ट, हमारा प्रैक्टिस पार्ट, वो सब सेम रहता है। तो आज की डेट में फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस बचा ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। यस मैम, अगर सीबीएसई का बच्चा आईएससी का एग्जाम देते बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, और आईएससी का बच्चा सीबीएसई एग्जाम में चला है, तो हल्का सा पैटर्न में डिफरेंस, आई थिंक कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। उसको लास्ट मोमेंट में चेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पहले से एक पैटर्न बना हुआ है, लोग समझते हैं सीबीएसई बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा अच्छा था। वो पहले ऐसा था, इसीलिए सीबीएसई ने, आईसीएसई ने इनिशिएटिव लिया है कि हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, तो सिलेबस को सेम कर देगा। यस मैम। नहीं मैम, टीचर देखिए कभी चेंज नहीं होते। टीचर्स में हमारे पास क्या है कि एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 2 टीचर्स रहेंगे, केमिस्ट्री में भी 3 हो जाएं, 3 ब्रांचेस के लिए। टीचर्स चेंज नहीं होते एक्सेप्ट कि कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए, कि कोई सी टीचर की तबीयत खराब हो गई, या किसी वजह से बहुत वर्स्ट कंडीशन में कोई कभी टीचर ने सिटी चेंज कर लिया। ऐसा नॉर्मली बहुत कम होता है, जैसे कभी एक बार बैच में हो गया तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। टीचर सेम रहेंगे, पूरी टीम पहले से डिक्लेयर कर देंगे हम। हाँ, कोई टीचर अगर बीमार हो गया 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, तो दूसरे टीचर को प्लेस पे पढ़ाएगा। क्लासेस बिल्कुल हैम्पर नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। 5 डेज अ वीक क्लास होंगी, 1 दिन टेस्ट का होता है। और टेस्ट तो बेस्ट प्लानर होता है, अगर बच्चे टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं सीरियसली 2 साल तक, कंसिस्टेंसी आपने बना के रखी हुई है। देखिए आप सिर्फ थोड़ा भी फॉलो करेंगे, जेईई में तो निकल जाएगा आपका। आप थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क कर लेंगे तो एडवांस में निकल जाएगा, नीट में अच्छी रैंक आ जाएगी। इस प्रोग्राम के हम लोग चैंपियन, आप न्यूट्रल सर्वे कर लीजिए पूरे लखनऊ में, न्यूट्रल सर्वे कर लीजिए। ये प्रोग्राम हमारा इतना हिट हो गया कि बाकी लोगों को तो आईटी सेल बैठा रखी है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में गूगल पे लिखते रहते हैं। हम लोगों को आईटी सेल नहीं है। तो इस प्रोग्राम में हम कैसे आए ये भी आपको मैं जल्दी बता दूं। जब हमने स्टार्ट किया था, दो बच्चों से हमने स्टार्ट किया 2004 में स्टार्ट किया था। हमने सिर्फ 2 स्टूडेंट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, और ये बहुत बड़ी टीम बनी हमारी, जाके 2014-15 में बनाई है। जब पहली टीम बनाई थी तो पहले ही सारे ब्रांड्स के बड़े टीचर्स ने मिलकर टीम को बनाया था। तो हम लोगों ने इतना ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको सीखा है। इतनी ज़्यादा गलतियां हमने करी हैं, हम खुद पता है ना क्या क्या गलतियां कर सकते हैं हम, और बच्चा क्या कर सकता है। बहुत गलतियां करी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ऐसी कोचिंग बिल्कुल सक्सेस नहीं होती कि अगर हम बिलियनर होते और सारे टीचर्स को लेकर कोचिंग बोल देते, नहीं चल पाता। मुझे पूरा नो हाउ पता है ना, क्या क्या वीकनेस टीचर में हो सकती है, क्या बच्चे में हो सकती है। एक एक स्टेज को हमने ईयर बाय ईयर देखा है।
हमने तभी देखा जब मेरे पास 2 बच्चे थे, फिर 4 बच्चे थे, फिर 20 थे, 50 थे, फिर 1000 हो गए। एक एक स्टेज को देखते हुए आए, क्या कमियां हैं, स्टडी मटेरियल में कहाँ कमियां। हम लोग का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, हम तो कहते हैं पूरी इंडिया में सबसे अच्छा है। आप सर्वे करके बताइए सबसे अच्छा है कि नहीं। जो कोटा में कोचिंग्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल है, सारे स्टडी मटेरियल इंडिया के हम लोग हर साल कलेक्ट करते हैं, परचेस करते हैं, एक एक टेस्ट सीरीज कलेक्ट करते हैं। कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रांडेड इंस्टीट्यूट ग्रेविटी के टेस्ट पेपर कलेक्ट ना करता हो, हम लोग पूरे इंस्टीट्यूट जितने इंडिया में सबके टेस्ट पेपर कलेक्ट करके पूरा थ्रू आउट द ईयर एनालिसिस करते हैं। कुछ भी अच्छा मिलता है तो हम ले लेते हैं। न्यूटन्स लॉ किसी टीचर ने नहीं बनाया है, जिसका भी अच्छा है उठा के पिक करके उसको अपने करिकुलम में इन्वर्ट करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। तो इसलिए हम लोग लगातार रिसर्च करते रहते हैं। हमारी R&D टीम बहुत बड़ी है, हमारे पास सिर्फ डिजाइनिंग के लिए 20 से ज़्यादा लोग हैं, लगातार जो स्टडी मटेरियल पे वर्क करते रहते हैं। और ये बहुत बड़ा की फैक्टर है। नंबर 1 टीचर्स की टीम, नंबर 2 हमारा R&D जो है, दोनों बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। यूपी में इतना बड़ा R&D सेल किसी के पास नहीं है। हम इनवाइट करते हैं, आप चाहें तो हमारा R&D सेल आके देख सकते हैं हम लोग कैसे रिसर्च करते हैं, पेपर कैसे बनता है, स्टडी मटेरियल कैसे बनाते हैं। IIT हर साल कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। हमारा मॉड्यूल हर साल जो स्टडी मटेरियल आपको देते हैं, एवरी ईयर कुछ ना कुछ, जेई में चेंज होता है, नीट में तो 2-3-4 साल में कुछ चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है मैम, आई थिंक सर यस वन मोर क्वेश्चन प्लीज। यस मैम। आप हमें फीडबैक मंथली देंगे, व्हाई नॉट वीकली? मैम वीकली फीडबैक में एक नहीं, कुछ तो because one test हो जाएगा और maybe after 2 tests if we get the feedback. हाँ मैम, फीडबैक नहीं, आपको पूरा रिपोर्ट कार्ड तो मिल जाएगा। जिस दिन टेस्ट होगा सेम डे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ऑफलाइन जो करेंगे तो आपको 2 दिन में मिल जाएगा। तो फीडबैक मीन्स कि हम लोग 2-3 टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होता है। फीड जैसे कि कुछ चैप्टर, जैसे केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर केमिस्ट्री में है, वो तो 1 मंथ में लग गया, 1 मंथ पूरा चैप्टर में लगता है। कभी-कभी 1 वीक में तो उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, उसमें बच्चा श्योर है कि अच्छा करेगा। हम लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि वो बच्चा अच्छा ही कर लेता है। तो जब सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तभी टेस्ट का ठीक से एनालिसिस हो पाता है। तो आप पर वीक आपको रिपोर्ट मिलेगा जब भी लेकिन 2-3 टेस्ट का एनालिसिस करने के बाद हम लोग PTM ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चे से भी बात करते हैं, क्या कमी रह गई है उसको दूर करते हैं। अगर आपने ये कसम खा रखी नहीं पढ़ना है, तभी एक कंडीशन है, अदरवाइज आप इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होके जाएंगे, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा और एफिशिएंट प्रोग्राम है। Sir, Yes. sir. So my younger daughter, she is in 9th class in the same prestigious institute. I just wanted to ask whether we can go for the package that you have for 9th, 10th, 11th, 12th for her, as she was not called today. नहीं, अच्छा 9th 10th तो आपकी बेटी हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है? नहीं, यहाँ पे सर। अच्छा, This ओके। institute. देखिए सर, अभी हमारा प्रिंसिपल मैम से डिस्कशन हुआ था, हमने एक प्रपोजल दिया भी था कि हम वी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th एंड 11th, 3 बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैम ने बोला पहले हम 11th क्लास का देखेंगे, उसके बाद पेरेंट्स अगर खुद ये क्वेरी लेके आते हैं, अच्छा कि आपने I am so excited and I will request the principal ma'am to मैम ने यही कहा था कि अगर पेरेंट्स खुद ये क्वेरी लेके आते हैं कि बच्चों के NTSC और ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है, और मैं खुद बता रहा हूँ कि अगर ये प्रिपरेशन बच्चा 9th क्लास से स्टार्ट करेगा, हम इस ठीक है, हम किसी रिजल्ट की गारंटी नहीं लेते, पूरा बैच अगर आपके पास, हम अपना 100% देंगे और आपको हम 3-4 महीने बाद ही पेरेंट्स को इंडिकेट कर देते हैं कि आपके बच्चा कैसे कैसे कर सकता है, अभी इसके पीछे हम कितना पढ़ सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सब कुछ पहले से क्लियर रहता है। एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं होता, सब कुछ एग्ज़ाम से पहले ही क्लियर होता है बच्चा क्या करने वाला है। ठीक है, तो अगर ये मैम अलाउ करेंगे तो हम चाहेंगे कि एक बार स्कूल ओपन हो जाए तो सारे पेरेंट्स को बुला के 9th का 10th के बच्चों का हम लोग वर्कशॉप करें ऐसे ही, और बहुत डिटेल में उनको NTSC ओलंपियाड बताएं। सर ने जैसे बताया था, अगर बच्चा NTSC की प्रिपरेशन करता है बोर्ड के साथ में, पहली बात तो बोर्ड बहुत अच्छा करेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करके NTSC होता है। NTSC जिस बच्चे ने भी निकाला है तो बहुत ज़्यादा इट्स वेरी लाइकली ही विल क्वालिफाई JEE एंड नीट व्हाटएवर ही प्रिपेयर्स फॉर, तो आसानी से वो निकाल पाएगा। यस मैम। तो आपके पास एक एडवांस क्वेरी आ चुकी है, तो एक बेस बन गया है कि आप 9th एंड 10th का भी मैम वो प्रिंसिपल में भी कॉल है, कब अलाउ करेंगी आप लोग? आपने जैसे बोला था कि आपने बिगनिंग एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट से की थी, तो ये शायद बिगनिंग होगी, इसका ये ठीक रिप्लाई है, है। तो ये रिक्वेस्ट मैम के पास जा चुकी, सामने बैठी हुई है, अब मैं मैम के ऑर्डर्स का वेट करूंगा कब ये हो सकता है। आपने बोला है कि स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, तो आप कब शेड्यूल कर रहे हैं?
मैम ये एक्चुअली स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का जो फीस स्ट्रक्चर जो फाइनलाइज होना है, अभी उसके लिए हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है मैम से। आई थिंक बहुत जल्दी उसको हम लोग फाइनलाइज करके आप लोग को बता दिया जाएगा। हम लोग इंडिविजुअली कॉल करके बताएंगे या स्कूल में बुला के बताएंगे, जैसा भी होगा, लेकिन बहुत जल्दी फाइनलाइज करेंगे और जल्दी हम लोग स्कॉलरशिप की डेट भी फाइनल करेंगे। आई थिंक Yes, Nehal. नेहल, She is our students from 9th onwards. अच्छा नेहल, Nehal cracked the लमाटने से है। NSTSC in class 9th. एक NSTSC Okay. एग्जाम होता है, उसका इंटरनेशनल रैंक है नेहल की। ये लमाटने से 9th क्लास में है, इनकी एंट्री नहीं, अब 10th में है, 9th में थी वो जब उसने क्रैक किया। NSTSC एक एग्जाम होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसे इंडिया ही कंडक्ट कराता है इसे। उसमें इनकी इंटरनेशनल रैंक है 1593। नेहल क्लास 9 से हमारे साथ है और ये 9th में बच्चों ने NSTSC का दिया था, जो यूनिफाइड काउंसिल हैदराबाद कराती है इस एग्जाम को। तो वहाँ इन लोगों की रैंक है ये बच्चों की। हमारा- तो ये हमने टाइम्स ऑफ इंडिया 6 अप्रैल को अभी पब्लिश हुआ था, तो उसमें हमने पब्लिश किया था फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज ऐड है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अच्छा, एक सेट का एग्जाम भी होता है, काफ़ी बच्चे सेट में जाना चाहते हैं। तो जो बच्चे हमारे कोचिंग लेते हैं सेट, उनके लिए तो बहुत आसान एग्जाम हो जाता है। अभी एक मैम को मैंने क्लिप शेयर करी थी, वो न्यूज़पेपर की, एक बच्चा है आमिश नाम का है, GN1 में है, गोमती नगर 1 CMS में। अभी जो वर्ल्ड के टॉप 6 कॉलेजेस हैं, जैसे आप MIT वगैरह है सब, उसका मैक्सिमम हो गया है। उसको 2 करोड़ की स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई है और अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉलरशिप उसको और भी आई थिंक 1 करोड़ का और भी कुछ एक्स्ट्रा उसको मिल गया छोटा सा प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उसने, हाँ वो मेरे पास है क्लिप, अगर मोबाइल में तो है, मैं कहिए तो अगर व्हाट्सएप पे आ सके तो शेयर करूँ। उसने तो स्टैट में काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है हमारे बच्चों को। स्टैट की अलग से हम लोग परमिशन नहीं कराते हैं, अगर बच्चा बोलता है तो हम लोग लास्ट के 1 मंथ में कुछ गाइडेंस देते हैं, ईजिली स्कोर कर लेते हैं। कुछ बच्चे तो पूरा ऑलमोस्ट 100% स्कोर कर लेते हैं। तो सैट का एग्ज़ाम का लेवल वैसा नहीं जैसा जेई का है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सैट बहुत ईजिली आप बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ क्लियर कर लेंगे, फुल स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। यस, एनी अदर क्वेरी? मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेरीज आप मैम लोगों से करें तो अच्छा होगा। यस सर। Could you please tell us about which is the faculty members who have been shortlisted to take up the program, SIP program of this college? सर अभी फैकल्टी मेंबर्स का फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जितने लोग आप देख रहे हैं इनमें से काफ़ी लोग रहेंगे। ठीक है, अभी तो हम फाइनल करके बता देंगे, लेकिन जो भी हम यहाँ पर फैकल्टी देंगे मतलब वो बेस्ट फैकल्टी देंगे, इतना आप सपोर्ट है। ठीक है, अपना Is it likely that the faculty of Hazrat would be coming here? या मोस्ट लाइकली। Okay. And what is the expected date of the classes to resume? मे बी अराउंड जून एंड में, लास्ट वीक ऑफ जून आई थिंक विल स्टार्ट। Okay. थैंक यू। एक्चुअली ये प्रोग्राम वैसे तो इसका बिगनिंग या फिर ये सारे सेशंस हो जाने चाहिए 5-6 मंथ्स बैक। बहुत लेट ये तो प्रपोजल मैम को गया, वो भी प्रपोजल जाता भी नहीं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था लमार्ट्स वाला ऐसा प्रोग्राम करेंगे भी। एक पेरेंट आए, बहुत रिक्वेस्ट करी और मैम ने नंबर देते हुए बहुत डर रहे थे कि उनका नाम न लिया जाए। मैं मैसेज करते हुए बहुत हेजिटेट कर रहा था। मैंने मैसेज किया, मैम ने एक्सेप्ट किया उसको। अदरवाइज तो हमने लमार्ट्स में तो अप्रोच भी नहीं किया, तो मुझे यही पता था शायद यहाँ नहीं चलेगा प्रोग्राम, ये यही मान के बैठे थे। हाँ So it is my humble request that you utilize just this June month also. It should be started earliest. ओके, मैम इज कमिंग। ठीक है, हम तो ये 10th या 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि During this time now the students are also relaxed. मैम आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, क्वेरी बहुत जेन्युइन है। मैं हम बिल्कुल चाहेंगे इससे पहले हो जाए। तो चलिए मैम से बात करते हैं, तो अगर चीज़ें एक्सेलरेट हो जाएं तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये 1 मंथ बहुत क्रूशियल है। Good evening, parents. I'm very happy to see that all of you are excited about this. I needed to have this sort of interaction with you so that you would know what Gravity is about and that you trust that the college is giving our girls the best. That is most important. We did not expect this sort of response. We will definitely be working then at a much faster speed to tie things up so that the girls do not lose time. So we'll plan things faster. This was just an introductory first step to know how many are interested. Now that we know things and things are clearer for me, we will definitely take this forward so that the girls don't have any setback of any sort. So we'll work
much faster on this, get back to you also faster. But we want the best, so we need to negotiate fees with her so that you get the best offer, and you should be feeling proud that the school and the girls will be safe in this environment. The time spent going to coaching centers will be reduced. The girls can concentrate, therefore, and do far better. That is the thinking with which we began this process. I'm thankful to whichever parent didn't approach us, but it informed Sir, and Sir did send me a text, and I passed it on to Ma'am Kapoor, who then did a lot of study to see, is Gravity really whom they pose to be, and are we really going to have the best for our girls? And after a lot of study and a lot of hard work by Mrs. Kapoor, we did understand that yes, they have the best faculty, and how the school would need to change a lot of things to accommodate that. It's not that we've said this yesterday and tomorrow we can start. No, it doesn't work like that. We have to see everything from whichever are the primary most important subject, compulsory subject, because after all our girls will be known for the ICSE and ISC result. So we have to understand that that is why you put them into La Martiniere for this examination, and this is our priority. So we have to work around all the timetables. They've already been made. We have to redo things. They need certain classrooms, certain setup. We need to ensure that everything is in place before we start. So bear with us. We've just begun this journey and we'll see it through, but do give us time to ensure that we have the best in place for our girls. Not that we start and we need to stop. Not that there are hiccups along the way. We want something to start, we want to do it well so that there are no problems and everything is smooth for Gravity, for La Martiniere, and most importantly for our girls. So just give us a few days, we'll work it out, we'll get started on this, and I hope that our girls get the best. And I'm thankful for parents like you who understand that the safety of the girls and the time of the girls is most important. And that is what we felt, that a lot of them waste a lot of time in going to and fro for tutorials, the school, and Sir has said they will work around our examination systems to see that the girls don't have unnecessary stress during our own examination systems, because those marks also have to go to council. So that is also important. So we have a lot of things to work out, which we will, and we'll start soon so that our girls don't miss out on anything. And thank you once again for being here this evening. But most of all, I'm thankful for our girls, because they are the ones who are going to actually have to work very, very hard. And like Sir said, if you've decided, children, to move in a particular field, the school and your parents are only the support. The school, the parents, Gravity will only be the support. It is up to each one of you individually to work hard and make the most of what is being given to you. So this evening is more important for each one of you to understand how important this is going to play out for the next 2 years of your life. Because this is the future that you've dreamt of. And if it's not your dream and it's only your parents' dream, rethink. Rethink. Because that's not going to help. You need to be focused. You need to be ensured that this is what you want, not what your mom and dad wants. And I'm saying it right here in front of your parents. It has to be your dream and your goal. And only when you think of it as yours, you will own the time and you will work towards it. So take this time to actually think, the next 2 years of my life are going to be like this. Am I up to it? Am I going to give it my best? Because if you're not, it's a waste of time for everyone. Not just you, not just the money involved, but for the institution, all the hard work we are going to put in, all the hard work of the faculty. So think it through, children, because this is your future. We are all in whichever place we are. Nothing's going to change for us, but it is going to change for you. So you need to seize the moment. So it's all up to you. I'll end with that. Thank you very much for being here this evening. We will work hard and soon to get back to each one of you. So thank you so much for being here. Any other questions you may have for me, I'll be happy to answer. It's a request. You consider for 9-10 also. Sir, I would happily do it for 9 and 10 if I was very sure as to where we were headed with Gravity. It's our first step. Let's journey this
together for a year or two, when we're sure of things, both as parents and as children, that we have a system that works, we'll definitely take it up. Thank you. So thank you so much for this evening and for all the staff who are here. I would like to thank Principal Ma'am, Das Ma'am, Kapoor Ma'am for giving this opportunity to come and present ourselves in one of the most prestigious schools of not only Lucknow but India as well. We are really thankful for our association and we hope that this venture will bring out the best in the students. Last but not the least, I would also like to thank all the parents for giving their precious time to us. Thank you very much.